Good afternoon and welcome. I am Pooja Shali. I am presently on location in Jahangirpuri where there was a bulldozer drive. JCB operators ensuring that the whole street from where the violence had ensued and had alleged unauthorized and illegal constructions were demolished. What was left was this aftermath in one of the sites. At least 20 to 25 constructions were completely demolished. We get you this special telecast from the ground. Heavy hand falls on Delhi's Jahangirpuri. 4 days after riots, bulldozers roll. Dread divisions and demolition in India's capital. Encroachment fight or action on rioters? आज अवैध निर्माण की ही वजह से इस मस्जिद पर इस तरह से कार्रवाई की गई है। मस्जिद के सामने जितना अवैध निर्माण था उसे रोक दिया गया है। India Today at Delhi's communal hotspot. 10 India Today cameras capture massive drama. Supreme Court puts brake, but demolition squad hits. The fallout of the communal violence on April 16th in the Jahangirpuri area in Delhi has now seen bulldozer justice, a new form of justice that has erupted in the national capital, Delhi. What did we see today morning? Dramatic scenes, chaos and commotion with heavy deployment. Bulldozers, the JCBs ravaged the small shops, buildings and shanties across Jahangirpuri, specifically in the area from where the violence had taken place. At least 9 bulldozers were on an anti-encroachment drive, destroying shanty shops, building in the locality. Over 100 MCD officials were present, manning the bulldozer drive and donning a red band so that they can be recognized. Security has been tightened in the area. Over 400 police personnel from Delhi Police, the CRPF, RAF, the SSB, all of them deployed here. And the Special Commissioner of Police, Dipendra Pathak, was also present in this area. This is ground zero where people are standing in large number amidst tight security arrangement. This encroachment removal drive is going on here. Police is stopping us. कहाँ आप लोग कर रहे हैं? Even police forces are stopping us to go to the ground zero. But I can show you from here that how bulldozers are working at this time on the main road of Jahangirpuri. This is Kushal Cinema Chowk, which is popularly known as, and now I can show you how bulldozers, the pan that is removing everything from road, the encroachment are being cleared from here. So this is the visual, which is the most important visual after the incident which happened on Saturday. These bulldozers are on move. Now the things are clear that not one but multiple bulldozers are working here to remove encroachment from ground zero at Jahangirpuri. So although situation is under control because heavy police deployment has been done here, but at the same time proper precautions are being taken care of. You can see how people are standing at their homes and from near their homes, the encroachment removal drive is going on. Whatever is on the roads, that will be removed by the bulldozers. They are also breaking these stairs which are being built on the road. So encroachment is not just about what can be seen as the shops, but even at the homes, the stairs which are being built on road, that are also being removed by the bulldozers. ये कॉर्नर पर वो दुकान है, यहीं से उस दिन वो पूरा जुलूस दाईं तरफ बढ़ा था और उसी पर कार्रवाई। सिर्फ कैमरा लगा रहे भैया, सिर्फ कैमरा कर रहे, सिर्फ कैमरा कर रहे। ये तस्वीरें आप देख रहे हो, ये बुलडोजर यहाँ पर भी चलता हुआ ऐसे ही
दो बुलडोजर आ चुके हैं और दोनों आमने सामने दोनों ही गलियों पर। एक बार जरा कैमरे से दिखा दीजिए, ये देखिए, ये दिल्ली फ्रूट जूस कॉर्नर पर ये हो रहा है अवैध निर्माण। नीचे में जूस कॉर्नर की दुकान और उसके बाद ऊपर में घर भी है, छोटे से रखने की भी जो जिस तरह का अवैध अतिक्रमण यहाँ पर सड़कों पर हुआ था उन सब पर कार्रवाई हो रही है। और उसी में आप देखिए जब ये आगे का हिस्सा गिरा है तो पता चल रहा है ऊपर में पूरा घर है, पंखा लगा हुआ है, घर है और उसे भी अब गिराया जा रहा है। कंक्रीट स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं, ईंटों की ये दुकान है और कंक्रीट स्ट्रक्चर पर पहली बार आप इस तरह से चलते हुए देख रहे हैं। एमसीडी का यह बुलडोजर अब धीरे धीरे करके कुशल चौक की तरफ पहुंच रहा है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए सामने की तरफ कुशल चौक है और ये बुलडोजर जो उत्तर प्रदेश में पहुंचा तो सियासत गर्म हुई, मध्य प्रदेश में पहुंचा तो सियासत गर्म हुई। अब ये बुलडोजर कुशल चौक एकदम सामने की तरफ आप देखेंगे तो कुशल चौक जो है सामने की तरफ मौजूद है, जहां पर जमकर हिंसा हुई थी। देखिए ये जो बुलडोजर है, ये बुलडोजर अब कुशल चौक पर पहुंच चुका है और ये बुलडोजर जिसे बाबा का बुलडोजर के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में ये बुलडोजर पहुंचा था तो जमकर सियासत हुई थी, मध्य प्रदेश में पहुंचा जमकर सियासत हुई थी। लेकिन अब ये बुलडोजर कुशल चौक पर पहुंच चुका है जहां पर जमकर हिंसा हुई थी, बवाल हुआ था और अब यहाँ पर जो इलीगल इंक्रोचमेंट था उसको तोड़ने की कार्रवाई यहाँ पर शुरू होगी कुछ देर में। बुलडोजर पहुंच चुका है और आपको बताऊं जब बुलडोजर यहाँ पर नहीं पहुंचा था तब से सियासत वो काफी ज्यादा गर्म हो गई थी। लेकिन कुशल चौक जहां पर पहले से ही एक्स्ट्रा फोर्स डिप्लॉय किया गया है वहां पर ये बुलडोजर पहुंच चुका है। अब यहां पर जो इलीगल इंक्रोचमेंट था उसको तोड़ने की कार्रवाई जो शुरू होगी, भारी पुलिस बल की तैनाती हमने आपको सुबह से दिखा रहे थे आपको। शायद बहुत मुमकिन है कि जो कबाड़ी मार्केट जहां बड़े पैमाने पर हिंसा में शामिल आरोपी थे, जहां से पत्थरबाजी हुई थी, वहां पर एक्शन हो। लेकिन ये बुलडोजर जरा अंकित आपको तस्वीरें दिखाएं, कुशल चौक जहां पर से हिंसा की शुरुआत हुई थी वहां पर पहुंच चुका है अब और यहां अब एक्शन शुरू होने वाला है। जाहिर सी बात है एक्शन शुरू होगा तो एक्शन का रिएक्शन भी सामने आएगा और अगर रिएक्शन आता है तो उसको संभालने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती यहां पर की गई है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती यहां पर की गई है। This is the visuals on our screen. This is a tea stall that was there on the corner of Kushal Chowk. This is the same location where we saw Sonu Chikna firing that bullet from after which he was arrested. हमें भी सबको मार दो, हमें भी मार दो। कलकत्ता के नहीं कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, अचानक आया तोड़ने लगी। यहाँ पर कम से कम 30 साल हो गया, 30 साल से दुकान लगा रहे, कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं। मैम आप पूरा शांत हो जाइए। कैसे शांत होगा मेरा 5 लाख रुपए कर्जा है। मैंने ये घर भी बनाया था बचपन से यहाँ पे। पीछे मेरा माँ का घर है, माँ का घर पीछे गली में। नहीं हम ये तो घर है हमारा, यही तो घर है, हम कोई दंगे मंगे में नहीं है जी, नहीं। As you can hear on our screens, these people, none of them were accused, none of their houses were demolished. You can see this person. You can see this on our camera screens. You can see the house of this person who's being demolished. You see घरों पे नहीं चलने वाला, ऐसा नहीं, जहाँ पे ऐसा नहीं कि सबके ऊपर बुलडोजर चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे रोड पे जहाँ कब्जा किया हुआ है या जहाँ अनऑथराइज तरीके से बना है उसके ऊपर ये कार्रवाई की जाएगी। उसकी लिस्टिंग है गवर्नमेंट के पास में, उसकी लिस्ट होगी गवर्नमेंट के पास, अभी हम लोगों के पास नहीं आई है वो लिस्ट अभी। जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक जी हमारे साथ मौजूद है। सर किस तरह की कार्रवाई की तैयारी है आज? आपने पूरे इलाके को देखा है, अब कितनी देर में हम समझे कार्रवाई होगी, प्लान ऑफ एक्शन क्या है? देखिए पुलिस का बड़ा फोकस्ड रोल है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का जी, और हम लोग असिस्ट कर रहे हैं जो भी एजेंसीज हैं, जैसे इस केस में एमसीडी का जो भी इंक्रोचमेंट रिमूवल प्रोग्राम होगा उसको हम लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से असिस्ट करेंगे। जिस तरह की मांग पुलिस फोर्सेस की गई है, ये ऐतिहासिक होगा। जहांगीरपुरी में ये पूरा इलाका जो हम देख रहे हैं इलीगल एनक्रोचमेंट्स दिखता है, कॉन्क्रीट इलीगल एनक्रोचमेंट्स, एक बड़ी चुनौती होगी लॉ एंड ऑर्डर की, ये देखते हुए कि पिछले दिनों से कितना वॉलेटाइल है सिचुएशन। इसीलिए एडिक्वेट अरेंजमेंट है और हमारा रोल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और उसी के लिए एडिक्वेट फोर्स प्रोवाइड करना। और चूंकि यहाँ इंसिडेंट हुआ था कुछ दिनों पहले, उसको लेकर सेंसिटिविटी ज्यादा
This is the street from where the Shobha Yatra had passed, and I'm standing outside a mosque. Some of the eyewitnesses' claims and video surfacing show that a lot of violence took place right here as well. The pelting and the scuffle that then became a full-fledged riot. Now, adjacent to it, not touching the religious site, but all these additional alleged unauthorized encroachments were brought down. The mosque, which saw also these communal clashes, you can see these demolitions, bulldozers bringing down illegal structures. It was on this very road that pelting and violence had broken out just about 4 days ago. And today, with the Supreme Court staying the demolition by then, some of the shops, at least 10 that I can count, had been broken down. The MCD says this was a part of their routine operation of removing unauthorized constructions. But it became a political face-off. As the demolition continues, CPM leader Brinda Karat reached the spot, tried to block, asking the JCB operator, specifically outside the mosque, to stop their demolition. And importantly, this has become a massive political showdown here in the national capital, Delhi. ये लाइव एक्सक्लूसिव पहली तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो मस्जिद यहाँ पर मौजूद है उस पर एंक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है। ये सामने वाले पूरे हिस्से को उन्होंने बताया है। सामने वाले जो हिस्सा है आगे का कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि जो निर्माण के आदेश हैं वो पीछे तक के लिए दिए गए हैं, लेकिन जो आगे वाला हिस्सा है वो अवैध निर्माण है और अब उसको गिराया जाएगा। ये वही मस्जिद है जहाँ से पहली बार हनुमान जयंती पर पथराव किया गया था। जब पहली बार पथराव किया गया था, ये देखिए पहली तस्वीरें आज तक पर आप देख रहे हैं। क्रेन चल रहा है मस्जिद के सामने, मस्जिद के ऊपर उसके सामने वाले हिस्से में जो अवैध निर्माण है उस पर पहला क्रेन चल गया। पहला क्रेन, ये वही मस्जिद है। ये देखिए मस्जिद आप देख रहे हैं और मस्जिद के साथ साथ जो आगे वाला अवैध निर्माण है उस सब को ढाया जा रहा है। ये देखिए ये पूरा इलाका आप देख रहे हैं, यहाँ से मस्जिद को गिराया गया। यहाँ से दिखाइए सर, पूरा इलीगल कंस्ट्रक्शन। बीच बीच में जो दीवारें हैं वो कंक्रीट की भी बना दी गई हैं। ठीक उस मस्जिद के सामने आज ये कार्रवाई हो रही है और मस्जिद के सामने से ही पूरी जगह से इसको गिराया जा रहा है। आप तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त लाइव, पूरी दीवार ढह गई, पूरी दीवार गिरा दी गई है। ये देख रहे हैं आप, जामा मस्जिद के गेट को तोड़ा जा रहा है। जामा मस्जिद के गेट को तोड़ा जा रहा है। ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं उसके गेट को अब तोड़ा जा रहा है। ये जो सामने वाला चबूतरा है, उस चबूतरे पर अब कार्रवाई की जा रही है और उस चबूतरे को तोड़ा जा रहा है। हम पहुंच चुके हैं जामा मस्जिद के दरवाजे पर। ये वही गेट है जहां से ये पूरा नजारा आप देख रहे हैं। इन सब के बावजूद इस चबूतरे को तोड़ दिया गया है। ये जो गेट था उसे ढा दिया गया है। जहां जहां अवैध निर्माण है उन सबको रोक दिया गया है। और ऊपर के इलाके में दिखाइए, ये मस्जिद का मेन दरवाजा है और यहीं पर ये इलीगल कंस्ट्रक्शन जितना भी था उन सबको तोड़ दिया गया है, ढा दिया गया है। सांकेतिक रूप से हनुमान जयंती की जो यहाँ से शोभा यात्रा निकल रही थी, यहीं से उस पर पत्थरबाजी हुई थी और उसके बाद इतनी सख्त कार्रवाई इस मस्जिद पर होना सबसे बड़ा संदेश है इस पूरे इलाके में। आज अवैध निर्माण की ही वजह से इस मस्जिद पर इस तरह से कार्रवाई की गई है। मस्जिद के सामने जितना अवैध निर्माण था उसे रोक दिया गया है। यहाँ से दुकानें गिनते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये पहली दुकान आप देख रहे हैं, दुकान नंबर 1, दुकान नंबर 2, ये तीसरा जिसमें आप देख रहे हैं मोटर पार्ट्स का काम किया जा रहा था, तीसरी दुकान। उसके बाद चौथी दुकान दिखाइए, उसके बाद 5वीं दुकान, 6ठी दुकान, 7वीं दुकान आप देख रहे हैं। ये देखिए 7वीं दुकान, उसके बाद 8वीं दुकान है ये जीनत कम्युनिकेशन, 9वीं दुकान, 10, 11, 12। एक मस्जिद के सामने 12 दुकानें अवैध तरीके से चलाई जा रही थी और उन 12 दुकानों को पूरी तरह से ढा दिया है एमसीडी ने। एक एक करके नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मस्जिद मंदिर के बाहर भी जो अवैध निर्माण तोड़ा जाएगा उसे यहाँ पर देखिए ये बड़ी संख्या में लोग हैं जो यहाँ पर अपना आक्रोश जाहिर।
Now remember, this has of course become a massive issue, not only with regard to a political showdown, but the matter has reached the court as well. What we saw here were completely dramatic scenes till the court intervened. Now, despite the Supreme Court halting or announcing a status quo, the MCD said they do not have an official order with them, and therefore the work continued and the alleged encroachments which were unauthorized were continued to be bulldozed. The demolition continued, but it was the North MCD mayor claiming that it will stop only post the order has been officially received. Then the Chief Justice of India again had to ask the registry to communicate the order to the North MCD mayor, commissioner and the police commissioner. And then CPM leader Brinda Karat reached the location and tried to stop. Now the order has reached the MCD and the demolition has been halted for now. बिल्कुल ये बंद हो गया। जेसीबी अब बंद हो गए? बिल्कुल बंद हो गए, सब वापस जा रहे हैं। सारे जेसीबी वापस ले जा रहे हैं? बिल्कुल वापस जा रहे हैं। कितने जेसीबी आए थे? 9 जेसीबी आए थे, आप यहाँ से देख सकते हैं, सब वापस जा रहे हैं। 9 जेसीबी आए थे, सब वापस जा रहे हैं? हाँ जी। इसके बाद की कार्रवाई क्या कुछ होगी आप लोगों की? देखो, ऐसा है, हमारे यहाँ पर जनता ने बहुत ही सपोर्ट की है और जनता ने खुद ही अपना सारा सामान हटा लिया, हमें इतनी जरूरत भी नहीं पड़ी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो लग रहा था कि बुलडोजर शायद वापस जाएंगे, लेकिन ये बुलडोजर अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी यहाँ पर चल रहे हैं। जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि आदेश नहीं आया है। आप लोग अभी भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी बुलडोजर चला रहे हैं। तो यहाँ पर तमाम जो कार्रवाई है वो कहा गया था कि रोकी जाएगी, लेकिन यहाँ पर बुलडोजर का जो है वो बुलडोजर चल रहा है। तो यहाँ पर लोग जो अधिकारी मौजूद थे उनसे हमने सवाल किया है कि क्या यहाँ पर अभी भी बुलडोजर चलाने की अनुमति है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोकने का आदेश दिया है। तो उनकी तरफ से कहा गया है कि अभी तक उनके पास कोई आदेश नहीं आया है और यही वजह है कि यहाँ पर बुलडोजर चल रहा है। जबकि यहीं से कुछ मीटर की दूरी पर जो मेयर है नॉर्थ एमसीडी के, वो खड़े थे। उन्होंने कहा कि हम उनको आदेश मिलने के बाद अब वो कार्रवाई रोकेंगे। तो ये तमाम स्थितियां अभी भी स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। तो ये है यहाँ पर अभी मौके पर जो स्थिति कि बुलडोजर चलेगा, रुकेगा, वापस जाएगा, क्या कुछ होगा, इस पर साफ तौर पर अभी कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ। All right, in this massive political showdown, we have a big breaking news now coming in. This is the Bharatiya Janata Party leader, GVL Narasimha Rao, taking an absolutely shocking remark on the JCB that bulldozed these illegal encroachments here in Jahangirpuri. And I quote what GVL Narasimha Rao has shared on social media site Twitter. He has said, the JCB, as an abbreviation, according to him, is Jihad Control Board, is what GVL Narasimha Rao has said. This has become really important because right now the BJP and the Aam Aadmi Party are engrossed in a complete showdown. The Aam Aadmi Party elected government in Delhi. The BJP is currently in charge of the Municipal Corporation of Delhi, and massive blame game specifically on the prime accused Ansar. But now with GVL Narasimha Rao's tweet saying JCB is equal to the Jihad Control Board, has definitely going to send that political showdown and escalate it to another level. And that tweet coming in right when the demolition drive has been on in this area. That is the big update that we are bringing to you sharp at 1:30 p.m. Now remember, here in Jahangirpuri, once the demolition happened, there were expected angry reactions as well, specifically of people who had here in Jahangirpuri had their encroachments demolished. The reactions were expectedly angry. India Today spoke to some of them, and primarily the reactions that came were of people alleging, one, of why notices have not been given, why were they not given time to ensure that they take away their items and their household elements in time. The trend, remember, that was set by Yogi Adityanath soon reached Madhya Pradesh and then Gujarat. The same has now been introduced post the Delhi communal clash. North Delhi Municipal Corporation carried out this anti-encroachment drive in Jahangirpuri, where clashes broke out during a Hanuman Jayanti procession, and that amid presence of a heavy police deployment.
Meanwhile, the Islamic body Jamaat Ulema Hind has urged Supreme Court to issue appropriate directions that residential places cannot be demolished as a punitive measure. Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan's government has used bulldozers also to demolish 16 constructions, houses, 29 shops of alleged stone pelters and accused who were accused of spreading violence during the Ram Navami procession in Khargone. झुग्गी में रहती रोड में, ये झुग्गी में रहते, इनको डर है। इन्होंने सुना है कि बुलडोजर चलने वाला है, तो ये अपने फ्रिज, अपने जो सामान है, कीमती चीजें हैं, वो हटा के एक सेफ लोकेशन पे ले जा रही है। या विजुअल्स देख रहे हो, कहाँ पे दूसरा का पास रखा हुआ है। हमारा यहाँ रहती हूँ, हम सोती पीती खाने पीने यहाँ। या हमारा बचपन दिल्ली का ही है, हम रहते हैं यहाँ पे। हमारा बचपन अभी नोटिस मिला है आप लोगों को हटाने के लिए? जी नहीं, हम लोग को कागज मिला है। कागज कब मिला था? कागज मिला, हाँ, ये 3-4 महीना हो गया कागज मिला है। एक नोटिस नहीं है, ये दुकान के बैठाने के लिए कागज मिला है हमको। ये जो आप लोग झुग्गी में रहते हो, इससे हटाने के लिए कोई नहीं, जी नहीं। मेरा नाम रमन झा है। ये आपकी दुकान थी? हाँ जी, हाँ जी। ये तो अब टूट गई पूरी तरह, बिल्कुल चकनाचूर कर दिए जी। मुझे मौका भी नहीं दिया हटाने के लिए। मैं 3 बार आया हूँ सुबह से, इतनी भीड़ भाड़ थी, फिर भी मैं 3 बार आया हूँ बचते बचाते कि मेरे एरिया को मैं यहाँ से निकाल लूँ, मगर निकालने का मौका नहीं दिया। 15 साल से दुकान है, तब तो कुछ नहीं बोला है। हिंदू मुस्लिम के झगड़े में तोड़ दिया, इतने दिन से नहीं तोड़ा। पहले तो बोलना चाहिए था। पहले 15 साल से ये दुकान है, 15 साल से। हाँ, इतना दिन नजर नहीं आ रहे इलीगल, अब नजर आ रहे, अब नजर आ रही है। पहले नजर नहीं आए थे, और हिंदू मुस्लिम के झगड़े में नजर आए। This is the visuals on our screen. This is a tea stall that was there on the corner of Kushal Chowk. This is the same location where we saw Sonu Chikna firing that bullet from, after which he was arrested. हमें भी सबको मार दो, हमें भी मार दो। कलकत्ता के बचपन में हम मुझे भी मार दो। नहीं, कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। अचानक आया, तोड़ने लगी। यहाँ पर कम से कम 30 साल हो गया, 30 साल से दुकान लगा रहे, कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं। मैम, आप पूरा शांत हो जाइए। कैसे शांत होगा बोलो? मेरा 5 लाख रुपए कर्जा है। हमने ये घर भी बनाया था बचपन से यहाँ पे। पीछे मेरा माँ का घर है, माँ का घर पीछे गली में। नहीं, हम ये तो घर है हमारा, यही तो घर है। हम कोई दंगे मंगे में नहीं है जी, नहीं। As you can hear on our screens, these people, none of them were accused, none of their houses were demolished. You can see this person. You can see this on our camera screens. You can see the house of this person who's being demolished. You see. यहाँ पर जो रिक्शा, जो ई रिक्शा, जो साइकिल, जो ऐसे ही लावारिश पड़ी हुई थी, उनको हटाया गया है। ये देखिए, यहाँ प्याज भी आपको नीचे गिर रहे होंगे, यानी लोगों की जो सामान रखा हुआ था उन जगहों से भी उन चीजों को हटाया गया है। जो अतिक्रमण, यानी जिनको लोगों ने बहुत आगे कई बार अपने दुकान बना लेते हैं, यहाँ पर देखिए। हालांकि अब जो लोग हैं यहाँ पर स्थानीय, वो अपने सामान को हटाते हुए भी नजर आ रहे हैं। वो भी अपने सामान को खुद ही हटा ले रहे हैं इससे पहले कि यहाँ बुलडोजर इससे पहले चले। So angry residents, while our netas are indulging in a blame game. Also remember, at this point, while the street has been cleared, while now people are coming out slowly and steadily from here in Jahangirpuri, the question remains, the street is cleared, but will the street return to calm as well? While our netas continue to indulge in political bickering, people have to ensure here in Jahangirpuri, they will have to live amicably and not let the April 16 violence disturb the peace and law and order in this area. I will continue to get you the updates from the ground in Jahangirpuri through the day. India Today, the only channel getting you all sides of the stories. Our reporter in all locations. Wrapping up this bulletin for now. Stay tuned. Thank you for watching.